नहीं बुरा नहीं। आप जब वो काला टेंशन मोशन मैं ये कह रहा था जी, बुरा तो मानिए ना। देखो ये जो लाइव वाली बात अभी आप बता रहे थे, अभी बंद है, कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ मेरे को बैठे बैठे ऐसा लगा क्योंकि दाल में काला है भाई। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसा है कि आपको तो हर चीज काली नजर आती है। HSSC के अंदर रौला पड़ेगा, हर चीज काली नजर आती है आपको। शायद जानबूझ के ना बंद कर रखे हो थोड़ी देर के लिए। ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अगर बंद करना होता तो शुरू नहीं करते हम, उससे पहले होता नहीं था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारा ये जो कॉल अटेंशन है इसको मंजूर करने के लिए we want to draw the attention of this august house that the teaching and non-teaching employees of the universities of the state are protesting against the government's move of recruiting staff through the Haryana Staff Selection Commission, that is HSSC, and the Haryana Public Service Commission, HPSC. The decision to appoint teaching and non-teaching staff at state universities through HSSC and HPSC was a direct attack on the autonomy of the universities. The move made by the government will have an adverse effect on the education and research work in the universities. The universities has been conducting written tests for various posts since its inception. Universities are an autonomous bodies and they have capable staff and expert to conduct their own recruitment. Committees are constituted for this purpose. Now this order will certainly have government's direct interference into the affair. This would prove costly to all. This is the biggest blunder which the BJP and the JJP government has made. All this is being done to give a backdoor entry to their favorite and choicest candidates or the party loyals. It will ultimately ruin the Haryana universities. Policy changes are not random acts of the whims and fancies of this power. The state government would have done deliberations before taking a decision to assume the control of key appointments in the state universities. The stiff opposition within the campus and by opposition lawmakers to move is not devoid of the merit. The BJP-led government, as expected, has been accused of trying to control academic institutions and impose the party ideology. The government is trying to wrest control of the appointments, which they claim is a violation of the University Grant Commission UGC guidelines. There will be no fair selection in the universities in view of the recent HPSC recruitment scam. The Teacher Association, the federations of the university decided to intensify their agitation if the decision of the government not rolled back. We therefore request the government to withdraw this order and make a statement on the floor of the House. We demand to withdraw the memo 18/84/2021 dated 8/11/21 from the Principal Secretary to Government Haryana Education Department, Chandigarh, to the Vice Chancellor. So we request the government to withdraw these orders and make a statement on the floor of the House. अब माननीय शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं वो पूरी तरह से निराधार है। हमने यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन है वो पूर्णतः बरकरार है। वीसी ही सभी कमेटियों का चेयरमैन रहेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो उससे संबंधित अधिनियमों के तहत ही चल रही है। ये अधिनियम उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव तथा एकेडमिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करते हैं। राज्य सरकार भी यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन तथा एकेडमिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता प्रदान करती है। वर्ष 2020 हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आने के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। यह एक क्रांतिकारी नीति है जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना करती है, जो देश में उच्च शिक्षा का चेहरा तथा परिदृश्य बदल देगी। हरियाणा राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने की शुरुआत में अग्रणी राज्य रहा है। जहां इस नीति को 2030 तक लागू किया जाना है, वहीं हरियाणा सरकार ने इसे 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है और इस संबंध में कुछ बड़ी पहल की जा चुकी है। उच्च शिक्षा संस्थानों की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके शिक्षकों की गुणवत्ता
तथा वचनबद्धता है। उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की भर्ती में विभिन्न समूहों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु पिछले कई वर्षों से विभिन्न पहल शुरू की गई है। हम उच्च शिक्षा संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ सक्षम शिक्षक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब से पहले शासनों के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन ही कर्मचारियों की भर्ती में प्रमुख रूप से कार्यरत रहा है। इसमें शैक्षणिक सुधार तथा अनुसंधान पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। किसी यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज का मूल उसकी फैकल्टी, टीचिंग तथा नॉन टीचिंग की गुणवत्ता ही है। यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज में निर्धारित संख्या में फैकल्टी उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी पदों को भरने के लिए एचपीएससी को भेजेगा तथा एचपीएससी टेस्ट तथा इंटरव्यू लेकर इन पदों को यूनिवर्सिटी एचपीएससी को भेजेगा। एचपीएससी टेस्ट तथा इंटरव्यू लेकर इन पदों पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी को देगा। वो लिस्ट यूनिवर्सिटी को ही देगा, यूनिवर्सिटी करेगी अपॉइंट।